یہ کہانی ایک ایسی ہی عورت کی ہے جس نے اپنی جوانی کے خواب غربت کے اندھیروں میں دفنا دیے۔ جس کا شوہر دنیا سے رخصت ہوا تو ساتھ ہی زندگی کی رونقیں بھی رخصت ہو گئیں۔ لوگ دلاسات دینے آئے مگر پیٹھ پیچھے انگلیاں بھی اٹھائیں۔ معاشرے کے تانے، غربت کی آگ، بچوں کی بھوک اور تنہائیاں سب کچھ مل کر اس کے کندھوں پر ایسا بوجھ ڈال گئے جس سے عام انسان ٹوٹ جائے، مگر وہ عورت نہیں ٹوٹی۔ اس نے دکھ کے ساتھ جینا سیکھا، بھوک کے ساتھ ہنسنا سیکھا اور معاشرے کے زہریلے رویوں کو برداشت کرنا سیکھا۔ یہ کہانی صرف اس عورت کی ہی نہیں، یہ ہر اس عورت کی کہانی ہے جو حالات سے لڑتی ہے، تنہائی سہتی ہے اور اپنی عزت کو تھامے رکھتی ہے۔ یہ داستان ہے صبر، حوصلے اور ایمان کی، جس میں دکھ ہے، محبت ہے اور وہ فیصلہ بھی ہے جو زندگی بدل دیتا ہے۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ جس روز سے چودھری منیر اسما کے گھر آنے لگے تھے تو اس کے تو دن ہی پھر گئے تھے۔ چودھری منیر خود تو آتے ہی تھے مگر اپنے ساتھ وہ گاڑی بھر کر سامان بھی لاتے تھے۔ راشن کے علاوہ ہر طرح کی سبزیاں، گوشت، بیکری کے آئٹمز۔ اسما نے تو آج تک اتنی چیزیں اکٹھی گھر میں آتی نہیں دیکھی۔ اسما کے شوہر ناصر کی تنخواہ بھی صرف 20,000 تھی۔ مشکل سے قرض لے لے کر ان کا گزارا ہوتا، اوپر سے 2 بچوں کا ساتھ اور مائکا بھی کمزور۔ اسما کا شوہر ناصر چودھری منیر کا پرسنل ڈرائیور تھا۔ ایک روز جب چودھری منیر کی گاڑی چلاتے ہوئے ناصر ٹرک کی ٹکر سے اللہ کو پیارا ہو گیا تو اسما کو یوں لگا جیسے اس کے سر سے کسی نے آسمان چھین لیا ہو اور پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ ناصر کی جیب میں بس 1000 روپے نکلے اور اسما کے پاس بھی پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ چودھری منیر نے ہی کفن دفن کا انتظام کیا تھا اور گل خانی وغیرہ کا انتظام بھی۔ پوری برادری کو زردہ پلاؤ کھلایا گیا۔ چند دن بعد اسما کے گھر سے عزیز و اقارب اور برادری کا ہجوم ختم ہو گیا اور اس دوران ہر کوئی خالی تسلی اور جھوٹا دلاسا دے کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تو اسما واحد کمرے میں بچوں کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، کیونکہ آگے کی آنے والی زندگی اسما اور اس کے بچوں کے لیے پہلے سے بھی کہیں زیادہ سخت امتحان تھی۔ بچوں کی فیسیں دینی تھی، گھر بھی کرائے کا تھا۔ اسما کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، لہٰذا جب اسے کوئی راستہ نظر نہ آیا تو وہ نوکری کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھانے لگی، مگر اس کی گود میں چھوٹی سی بچی تھی اور اس بچے کی وجہ سے کوئی اسما کو نوکری پر بھی نہیں رکھ رہا تھا، لہٰذا پھر اس نے سوچا کیوں نہ مجبوریوں کے تحت میں اپنے 11 سال کے بیٹے علی کو ہی کہیں نوکری پر لگوا دوں۔ ایک دن اسما نے محلے کے کسی آدمی کے ساتھ علی کو دکان پر بھیجا اور پھر جب محنت مشقت کر کے رات کو چاند سا بیٹا کالا کلوٹا ہو کر گھر لوٹا تو ماں کا سینہ پھٹنے کو آ گیا۔ ماں نے جلدی اسے نہلا دھلا کر کپڑے پہنائے، ماتھے پر بوسہ دیا تو بیٹے نے جیب سے 300 روپے نکال کر ماں کو تھمائے تو اسما کو کچھ دیر پہلے خود سے کیا ہوا عہد ٹوٹ کر بکھر گیا کہ آئندہ علی کو دکان پر کام کرنے کے لیے نہیں بھیجوں گی۔ لہٰذا علی تھوڑا بہت کام کرنے لگا مگر گزر بسر پھر بھی مشکل تھی۔ اس کی تھوڑی بہت آمدنی سے چھوٹی بچی کا دودھ ہی پورا ہوتا تھا یا پھر ایک وقت کی روٹی۔ ایک دن چودھری منیر نے علی کو دکان پر دیکھا تو فوراً اسے پہچان لیا۔ چودھری منیر نے جب بچے سے حال حوال معلوم کیا تو بچے نے بتایا کہ اسکول چھوڑ کر ادھر کام کرتا ہوں تو چودھری منیر کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ ناصر اس کے سامنے اکثر کہا کرتا تھا کہ چودھری صاحب میرا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام علی ہے اور وہ ہے بھی بالکل چاند جیسا، چاہے مجھے بھوکا کیوں نہ رہنا پڑے میں تو ہر حال میں اسے پڑھاؤں گا۔ لہٰذا چودھری منیر نے علی کو اپنا وزٹنگ کارڈ دیا اور کل آ کر کارڈ والے ایڈریس پر ملنے کو بولا۔ علی کارڈ لے کر گھر آیا تو اسما کو امید لگ گئی کہ شاید چودھری منیر ان کی کوئی مالی مدد کر دیں، کیونکہ ناصر چودھری منیر کی ثقافت اور دریا دلی کے بہت قصے سنایا کرتا تھا۔ ویسے تو ناصر کی وفات پر بھی انہوں نے پیسے دیے تھے مگر اسما نے اس سے اپنا قرض ادا کر دیا تھا۔ عدت گزر چکی تھی، اسما خود علی کے ساتھ چودھری منیر کے پاس آ گئی۔ چودھری منیر شہر کے ایک نامی گرامی کاروباری شخصیت، عزت، دولت اور شہرت انہیں وراثت میں ملی تھی۔ جوان بچوں کے باپ اور نماز روزہ زکوٰۃ کے پابند درویش درد مند انسان تھے۔ نہ جانے کتنے خاندان ان کے زیر کفالت تھے۔ ناصر ان کے پاس 10 سال تک کام کرتا رہا تھا۔ انہیں اس کی تابعداری بہت پسند تھی۔ اس کی وفات کا ان کو بہت صدمہ تھا، لیکن جب اس روز ناصر کے بیٹے کو دکان پر دیکھا تو ان کا دل بھر آیا تھا۔ علی انہیں جناز اور کل خانی پر ملا تھا، اسی وجہ سے چودھری منیر علی کو فوراً پہچان گئے تھے۔ اسما سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ ویسے بھی وہ عورتوں سے ملنے سے کتراتے تھے، لیکن اب تو اسما بیٹے کے ساتھ آ چکی تھی۔ ملازم کے بتانے پر انہوں نے دونوں کو کمرے میں
बुलवाया। ऑफिस की शान व शौकत देखकर उसके होश गुम हो गए। अपने ही ख्यालों में मुंह पर काली चादर लपेटे हुए अली के साथ अंदर आ गई। सलाम का जवाब देने के बाद चौधरी मुनीर ने दोनों को बैठने का इशारा किया और खुद अपनी चेयर पर सीधा होकर बैठे और बोले, मुझे बहुत अफसोस है, हमने नासिर को खो दिया। बहुत ईमानदार और मुखलिस इंसान था, लेकिन क्या हो सकता है, जैसे रब की रजा। कल बच्चे को दुकान पर देखा तो बेसाख्ता मेरा दिल कांप उठा कि मैं कैसे इतने माँ आप लोगों से गाफिल रहा। मेरा अल्लाह मुझे इस गफलत की माफी अता फरमाए। मैं आप लोगों की मदद का पाबंद हूँ। चौधरी मुनीर सर झुकाए धीमे लहजे में बोल रहे थे और अस्मा रो रही थी। मुलाजिम जूस लेकर आया तो चौधरी मुनीर ने दोनों को जूस पेश किया। चौधरी मुनीर के इसरार पर अस्मा चेहरे से चादर हटाई और जूस का घूंट भरा। गैर इरादी तौर पर चौधरी मुनीर की नजर उस पर पड़ गई। गोरी रंगत, गमगीन आंखें, तीखी नाक के नीचे गुलाबी लब व रुखसार, उसको देखकर चौधरी मुनीर मदहोश होकर रह गए। यहाँ तक कि हाथ में थामी तस्बीह के दाने गिनना भी भूल गए। उन्होंने फिर इरादी तौर पर उसे 2-3 बार देखा। इसी दौरान चौधरी मुनीर की नजरों की तपिश को महसूस करते हुए जूस पीकर जब अस्मा ने अपना चेहरा काली चादर में लिपेट लिया तो चौधरी मुनीर को यूं लगा जैसे चांद बादलों की ओट में जा चुका हो। अच्छी खासी रकम के साथ अस्मा चौधरी मुनीर का दिल भी लेकर घर आ चुकी थी। शाम में दोस्तों की महफिल सजती, दीनी और दुनियावी बहस व तकरार होती। चौधरी मुनीर गुफ्तगू में पेश होते, लेकिन आज उनकी तबीयत बेजार सी थी। इसी सबब वो जल्दी उठकर घर को चल पड़े। अमूमन रात 9 बजे उनकी वापसी होती थी तो तब खाना खाया जाता था, मगर आज 7 बजे ही आ गए थे। लाउंज में पलंग पर शमीम बेगम पाँव के सहारे लेटी हुई थी और खादमा उनके पाँव दुबा रही थी। उन्हें देखते ही बोली, खैरियत तो है ना, आज इतनी जल्दी आप घर आ गए? गलती हो गई, वो कहकर कमरे की तरफ भड़के। साजदा भागो, चौधरी साहब को कपड़े वगैरह दो, रात का खाना सब इकट्ठे खाते थे। इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाती थी। बावर्ची खाना तरह तरह के खानों से मेज भर देता। चौधरी मुनीर खूब दिल लगाकर खाते, लेकिन आज किसी चीज में जायका नहीं था। जल्दी उठ गए और नमाज की तैयारी करने लगे। नमाज के दौरान भी उनको अस्मा के ख्यालात सताते रहे। चौधरी मुनीर ने नमाज पढ़कर उनके ख्याल को झटका और अस्तगफार का विर्द किया। कमरे में सोने आए तो शमीम बेगम आधे से ज्यादा बेड पर काबिज थी। खराटे लेता हुआ बीवी का भारी भरकम वजूद आज उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सिवाय बोझ के चौधरी साहब ने कोने में नाराजगी के आलम में मुंह मोड़कर आंखें मूंद ली। दिल की दुनिया बदल चुकी थी। दिन भर वो जब भी ऑफिस में मौजूद होते तो चौधरी साहब को बार बार ये गुमान रहता कि शायद अस्मा आई है, मगर हर बार उन्हें मायूसी मिलती। जुमे के रोज पहले टाइम वो घर पर ही होते थे। रिश्तेदार दोस्त मिलने आते, सारा दिन खाना पीना चलता रहता। दोपहर को दफ्तर जाते वक्त वो जुमा पढ़कर सफेद कुर्ता शलवार में खुशबू लगाकर, कमीज में खुशबू लगाकर जब वो गाड़ी पर सवार होकर घर से निकले तो गाड़ी में दुख या गाना लगा दिया और माहौल सा बना दिया था, जिसे सुनकर चौधरी मुनीर को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। वो पिछली सीट पर थे, बटन दबाकर शीशा खोल दिया। ठंडी हवा के झोंके दाढ़ी से टकराए, दिल में गुदगुदी सी हुई और दिल बेकरार हो गया। जरूरी तो नहीं कि हर बार यार ही खुद चल कर आए, कभी कभी महबूब को देखने के लिए अपनी हाजिरी देना भी जरूरी है। वो बोले ड्राइवर से कि नासिर के घर चलो। ड्राइवर ने तंग व तारीख गली के शुरू में गाड़ी रोक दी, फिर आजिज़ी से नीचे उतरे और गाड़ी का दरवाजा खोला। पास खेलते बच्चे खेल कूद छोड़कर चमक मारती गाड़ी को शौक से देखने लगे। क्या हुक्म है, मैं बच्चों को बुला लाऊं? ड्राइवर ने उनसे पूछा। नहीं, तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं तो तुम यहीं रुको। चौधरी मुनीर ने नजरें झुकाए कहा और आगे बढ़ गए। नासिर की वफात पर तो यही इसी कच्ची जमीन पर टेंट लगे थे, मगर नासिर का घर दूसरी मंजिल पर था। लोहे की तंग सीढ़ियां चौधरी मुनीर के कदम की मुंतजिर थी। सीढ़ियों पर पानी और कीचड़ भी था। चौधरी मुनीर संभल संभल कर पांव रखते बड़े से किसी दरिया में उतर आए हों। इश्क भी किसी दरिया से कम नहीं होता, ये अपने अंदर उतरने वालों को अक्सर निकल लेता है। मगर आशिक कब तपते सहरा या समंदरों से डरते हैं। सामने एक दरवाजा था जिसका रंग जगह जगह से उतरा हुआ था। चौधरी मुनीर का दिल धक धक कर रहा था। चौधरी मुनीर ने होश संभाला तो वालिद साहब ने 2 और 2 4 के चक्कर में डाल दिया। कारोबार में फंसकर जवानी की राह में ठहरी रह गई। फूफो की बेटी शमी बेगम से ब्याह कर दिया गया। वो भी कारोबारी बाप की बेटी थी। चौधरी मुनीर से ज्यादा पैसे का हिसाब रखने वाली, ऊपर नीचे के 7 बच्चे हुए। जब तलब होती तो वो मुयस्सर ना होती। सारी जिंदगी ख्वाहिशात की कुर्बानी में गुजर गई। दिल मौज मस्ती को
चाहता तो अल्लाह के खौफ, खानदानी शराफत और हसब व नसब आड़े आ जाता, लेकिन दिल के किसी कोने में ख्वाहिश का मध्यम सा दिया जरूर जलता रहता। किसी प्यार भरे नाजुक लम्स की हसरत बाकी थी और उस दिन अस्मा को देखकर उन्हें यूं लगा कि हाँ तुम ही थी जिसके लिए मेरी ख्वाहिशात का दिया आज तक सलगता रहा। मगर अस्मा कहाँ थी तुम? दरवाजे पर घंटी तो नहीं थी, मजबूरन दरवाजा बचाना पड़ा। एक दस्तक, दो दस्तक के बाद आवाज आई, आजा वाली, दरवाजा खुला है। वो कुछ देर सोचते रहे, फिर जोर लगाकर दरवाजा खोला। चौधरी मुनीर दरवाजे के सामने लटका हल्का सा पर्दा हटाया तो सामने ही अस्मा शलवार टखनों से ऊपर किए दुपट्टे से बेनियाज झाड़ू पकड़कर फर्श धो रही थी। पास ही लोहे की बाल्टी रखी थी। आप ही जाओ अली, घंटा लगा देते हो। वो सर झुकाए अपनी धुन में बोली। चौधरी मुनीर ने गला खुनकार कर साफ किया तो अस्मा हैरत से आने वाले को पांव से लेकर सर तक देखने लगी। अचानक उसके उसान बहाल हुए तो भागकर पास पड़ी चारपाई से अपनी चादर उठाकर सीने और सर पर लपेटी और अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, आप आए ना। और चारपाई पर बिखरी बच्चों की किताबें समेट कर लिपटी हुई चादर दुरुस्त की और उन्हें बैठने का इशारा किया। चौधरी मुनीर धीरे धीरे आगे बढ़े, चारपाई के किनारे पर बैठ के इतनी देर में अली भी पानी से भरा हुआ डोल उठाए भीगी चप्पलों से चलता हुआ आ गया। चौधरी मुनीर को देखकर एक पल के लिए ठटक सा गया। चौधरी मुनीर साहब ने उसे प्यार से पास बुलाया। कुछ देर उससे बातें करते रहे। इतने में नासिर की लाडली बेटी भी उनके पास आ गई। अस्मा ने इशारे से अली को बुलाया और गली की नुक्कड़ की दुकान से अली को बिस्किट लाने का कहा। खुद अपना लिबास दुरुस्त करके पास रखे स्टूल पर आ बैठी। अली बता रहा है कि उसका एडमिशन नहीं हुआ स्कूल में। चौधरी मुनीर ने सवाल किया। जी, वो कहते हैं गैर हाजिरी ज्यादा हो गई है, अब बच्चा स्कूल नहीं आ सकता। अब अगले साल दाखिल करवाना या एक जमात पीछे बिठाएंगे। वो अदब से नजर झुकाए बोली, इस तरह तो उसका एक साल जाया हो जाएगा। वो बोली, जी जी यही तो दुख है। वो जल्दी से बोली, अब भला अस्मा को कोई दुख हो और चौधरी मुनीर चैन से बैठ जाए, कैसे मुमकिन था। फौरन मोबाइल निकाला और किसी से बात करने लगे। फोन के दौरान चौधरी मुनीर ने अस्मा से अली की क्लास भी पूछी। फोन बंद करके बोले, अली का साल जाया नहीं होगा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसहाक साहब प्रिंसिपल हैं, आप सुबह 7 बजे चली जाना। अस्मा बहुत हैरान थी और इतने में चाय भी ले आई। चौधरी मुनीर के पास ये चाय पीने का टाइम नहीं था, लेकिन चाय अस्मा के हाथों ने बनाई थी। उन हाथों की चाह में वो भी पी ली। इसी दौरान खामोशी रही। चौधरी मुनीर की नजर झुकी रही। अस्मा के गोरे चिट्टे पाँव जो सुर्ख चप्पलों में और भी सफेद और गुलाबी लग रहे थे, उनमें चौधरी मुनीर की नजरें उलझी रही। उठने लगे तो अस्मा को अगले दिन प्रिंसिपल साहब के पास जाने की ताकीद करते हुए उन्हें ख्याल आया कि कहीं अस्मा इस साहब के पास जाए तो कहीं इसका दिल भी इस पर आ गया। आगे वो सोच ना सके। जल्दी से बोले, आपको बिल्कुल वहां जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ पिछले स्कूल का सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट के साथ आप अली को 8 बजे तैयार रखना। मेरा ड्राइवर आकर ले जाएगा और एडमिशन और किताबें और यूनिफॉर्म के साथ वापस घर भी छोड़ जाएगा। जी अच्छा, अस्मा ने कहा तो चौधरी मुनीर को सुकून सा मिल गया। अपनी मनपसंद चीज हमेशा दूसरों से बचा कर रखनी चाहिए। आजकल तो किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सोचा और रकम का लिफाफा अस्मा की तरफ बढ़ाया। जी इसकी क्या जरूरत है, अभी पहले पैसे पड़े हैं। और अस्मा सादगी से बोली, नहीं ये आपका हक है। मेरी तरफ से। उन्होंने पहली बार उसकी खूबसूरत आंखों में झांकने की जुर्रत की और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गए। शाम और रात तो फिर बेकरारी में गुजरी। दुपट्टे से बेनियाज अस्मा का नाजुक सा वजूद और माथे पर बिखरी बालों की लटें, मासूम सा हुस्न, हसरत भरी आंखों से देखना दिल में दर्द और सीने की हिद्दत को बढ़ाता रहा। मोहब्बत तो नाम ही इनायत का है, फिर अपना सब कुछ महबूब के कदमों में बिछा देने का नाम है। तारीख गवाह है कि बादशाहों ने भी मोहब्बत की खातिर अपने तख्त व ताज को ठोकर मार दी थी। चौधरी मुनीर बिना किसी हिसाब किताब के अस्मा पर नवाजिशें करते रहे, क्योंकि मोहब्बत में भला हिसाब किताब कैसा। लिहाजा चौधरी मुनीर की मेहरबानियों की बदौलत अब अली और उसकी बहन दोनों स्कूल जाते थे। चौधरी मुनीर हफ्ते 2 हफ्ते बाद आते तो ड्राइवर 2-4 चक्कर गाड़ी से सामान उठाकर अस्मा के घर में रखता। चौधरी मुनीर अस्मा की दीद के भूखे थे और अस्मा चौधरी मुनीर की मेहरबानियों के बोझ तले दबती जा रही थी। उन्हें अपना हमदर्द समझती थी। क्या कुछ नहीं करे थे वो उसके लिए। नासिर के बाद तो किसी ने उसका हाल तक नहीं पूछा था। अच्छी खुराक और माली तंगी से बेफिक्री की वजह से अस्मा की सेहत बहुत अच्छी हो गई थी। वो मजीद खूबसूरत बनती जा रही थी। चौधरी मुनीर के लाए हुए ब्रांड्स के जोड़े पहनकर वो बिल्कुल किसी शहजादी की तरह लगती थी। चौधरी मुनीर यही चाहते थे। अब वो उन
से भागती भी नहीं थी। चौधरी मुनीर ने उससे मोबाइल फोन भी लेकर दिया और उसमें एहतियात से सिर्फ अपना नंबर सेव करके दिया। जब वो हंस हंस कर बातें करती तो चौधरी मुनीर का दिल लूट लेती। जब उसके घर से होकर जाते तो घंटों मसरूर रहते। चौधरी मुनीर का नया ड्राइवर भी अपनी निगाह से अपने मालिक के एक पुराने ड्राइवर की बेवा बीवी पर पड़ती अनायतों को देखकर समझ रहा था। मालिक के हर हुक्म को सर झुकाकर पूरा करना उसका फर्ज था, मगर दुनिया वालों का मुंह बंद करना आसान नहीं होता। लोग अस्मा पर तोहमतें लगाने लगे थे। औरतें उसे देखकर सरगोशियों में बातें करती। गली मोहल्ले वालों ने मिलना जुलना छोड़ दिया। बच्चे उसके बच्चों से खेलना छोड़ गए थे। अस्मा इस सूरत हाल से परेशान थी, मगर चौधरी मुनीर से तस्करा नहीं किया था कि वो इंसान क्या सोचेंगे। उन्होंने तो कभी भी इससे कोई ऐसी बात नहीं की थी जो इखलाक के दायरे से बाहर हो। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। मालिक मकान ने मोहल्ले वालों की दर्जनों शिकायत पर अस्मा को 2 दिन के अंदर अंदर घर खाली करने का नोटिस भिजवा दिया। अस्मा को नासिर उसी घर में ब्याह कर लाया था, इतने सालों का साथ था। अब वो यहाँ से कहाँ जाएगी, किधर किराए का घर ढूंढती फिरेगी, सामान कौन उठाएगा। लिहाजा वो बेचारी बुखला सी गई। चौधरी मुनीर को शाम ढले परेशान हाल में अस्मा का फोन आया तो वो ऑफिस से घर जाने के बजाय सीधा उसकी तरफ आ गए। नम आंखों से अस्मा ने जल्दी से दरवाजा खोला। बच्चे सो चुके थे। चौधरी मुनीर को सूरत हाल का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसने रोते हुए उन्हें तमाम बातें बताई कि किस तरह मोहल्ले वाले उसके और उनके किरदार पर कीचड़ उछाल रहे हैं और उसे इस मोहल्ले से भी निकाल रहे हैं। अब वो कहाँ जाएगी। वो फूट फूट कर रो रही थी। चौधरी मुनीर से उसके आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। पहले तो वो इस ज़बान कलामी तसल्ली देते रहे। जब उससे भी मामलात हल ना हुए, उन्होंने आगे बढ़कर उसके नाजुक से वजूद को अपने सीने में समा लिया। एक तो रात की तन्हाई, सहन में चांद की चांदनी का अक्स, दूसरा इश्क आतिश। मुनीर को यूं लगा जैसे उसकी इस सब नेकियों के बदले उसे जन्नत इसी दुनिया में मिल गई है। और चौधरी मुनीर के सीने से लगी अस्मा को समझ नहीं आ रही थी कि वो खुद को इन मेहरबान बाहों को सौंप दे या फिर खुद को छुड़ा ले। वो एक तन्हा औरत थी और तन्हा औरत पानी के ऊपर तैरते हुए एक तिनके से भी ज्यादा कमजोर होती है। और उस नेक शख्स ने उसे सारी दुनिया की गंदी नजरों से बचा कर रखा था। उसके लिए, उसके बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया था। लोगों की उंगलियां तोहमत के लिए तो उठ जाती हैं, मगर किसी मजबूर इंसान की मदद के लिए नहीं उठती। चौधरी मुनीर के वजूद से उठती खुशबू अस्मा की सांसों में शामिल हो रही थी। उस दौरान उसका बेटा अली बालकनी से झांक कर यह सब मंजर देख रहा था और चौधरी मुनीर अस्मा की गुर्बत का वो लम्हा पाकर जा चुके थे जिसका ख्वाब गुज़श्ता कई महीनों से वो अपनी आंखों में सजाए हुए थे। चौधरी मुनीर की बाहों की गिरफ्त से अस्मा ज़ात तो हो गई थी, लेकिन तमाम उम्र उसके लिए एक नए रिश्ते की जंजीर में कैद हो गई थी। नया घर खरीदना चौधरी मुनीर के लिए मसला ना था और शिफ्टिंग भी मुश्किल ना थी। अस्मा तो सिर्फ बच्चों की उंगलियां थाम कर निकली थी। सारा काम तो चौधरी मुनीर के भेजे हुए बंदों ने किया था। चौधरी मुनीर तो बस गुर्बत के इस हसीन लम्हे की कैद में थे। अब तो वो तन्हाई में भी अक्सर मुस्कुराते रहते थे। दुनिया का सबसे खूबसूरत जज्बा मोहब्बत है, और जो इस जज्बे का सैर हो जाए वो कहीं का नहीं रहता। नया घर बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा था। बच्चे नए घर में आकर बहुत खुश थे और अस्मा को तो ये सब ख्वाब लग रहा था। उसे लगता था कि आज तक उसने अपनी उम्र एक डब्बे में रहकर गुजारी थी। वो अपने बच्चों के खिले हुए चेहरे देखकर बहुत खुश थी। लेकिन इधर चौधरी मुनीर साहब अजीब शश व पंच का शिकार थे। वो अस्मा को इस मोहल्ले से तो निकाल आए थे, लेकिन वो जानते थे कि नई जगह पर भी कुछ अरसे बाद सवाल उठने लगेंगे, और इससे भी बढ़कर अब उनको अपने दिल पर इख्तियार नहीं रहा था। वो अब अस्मा से दूर नहीं रह सकते थे, मगर दूसरी तरफ वो गुनाह से भी डरते थे। सारी उम्र ईमान की कमाई डूबने का डर दामनगीर था और वो अपनी आखिरत भी खराब नहीं करना चाहते थे। फिर वो तफसीर खोल कर बैठ गए महरम ना महरम पर। लिखे किताबी मज़मून पढ़ने लगे, अहादीस ढूंढने लगे। दिल और दिमाग में जंग जारी थी। जब वो बेहद मजबूर हुए तो बहुत करीबी दोस्तों को शरीक किया। दोनों ने समझाया कि जवान औलाद के होते हुए दूसरी शादी का ना सोचे, मगर उन्हें मशवरा ना
گوارا لگا۔ نکاح تو اسلام میں بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ دل دلیلیں دینے لگا۔ سوچا اسما سے بھی بات کر لوں، کیا خبر وہ راضی ہو یا نہ ہو۔ بہار کے دن تھے، علی سکول تھا۔ چودھری منیر صاحب کی آمد پر اب اسما شرمائی اور سمٹی سمٹی رہتی تھی۔ نہ جانے دن میں کتنی بار اسے چودھری صاحب کو بے اختیار گلے لگانا یاد آتا تو اس کی آنکھوں میں نشہ سا چھا جاتا، دل میں گھنٹیاں سے بجنے لگتی۔ ناصر کے بعد پہلی بار کسی مرد نے اسے چھوا تھا۔ اسما کی ابھی عمر ہی کیا تھی، 17 سال میں ہی تو اس کے باپ نے اسے بیاہ دیا تھا۔ ماں تو بچپن سے ہی نہیں تھی۔ اسما کی شادی کے بعد ابا نے بھی اپنا گھر بسا لیا اور اپنی محبوبہ کہیں ہو کر رہ گیا۔ اسما کے جذبات بھی پھر سے جاگ اٹھے تھے۔ وہ ساری رات چودھری صاحب کی اس خوشبو کو اپنے ارد گرد محسوس کرتی رہتی تھی جو اس دن اس نے سوچی بھی نہ تھی، جب چودھری صاحب نے اس کا ہاتھ تھام کر ہمیشہ کے لیے ہاتھ مانگا تھا۔ چودھری صاحب چاہتے ہوئے تو اس کی مجبوری کے بنا نکاح کیے بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے، مگر اسما کے لیے تو یہ چودھری صاحب کا بڑا پن تھا۔ ان کے سوال پر اسما نے شرما کر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور چودھری صاحب اس کی اس ادا پر مر مٹے تھے۔ کورٹ میرج کا واحد گواہ وہی ڈرائیور اشفاق ہی تھا جس کے ساتھ اسما اور چودھری منیر صاحب کا نکاح ہو گیا تھا۔ حجاب و قبول کے بعد ساری کارروائی مکمل کروا کر جب دونوں واپس لوٹے تو دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ گاڑی میں چودھری منیر صاحب کے کندھے سے کندھے ملا کر بیٹھی اسما خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت سمجھ رہی تھی۔ کہاں چودھری منیر صاحب جیسی شخصیت اور کہاں یہ غریب بے بس لاچار بچوں کی ماں اور بیوہ عورت اسما۔ اب اسما چودھری منیر کی ہو چکی تھی اور وہ اپنی قسمت پر جتنا بھی رشک کرتی کم تھا۔ ادھر چودھری منیر صاحب کی کیفیت بھی مختلف نہ تھی۔ انہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی جوانی کے گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں۔ انہیں اسما کو پیار دینا بھی آتا تھا اور لینا بھی۔ اسما کے وجود میں عجیب کشش، جادو اور انوکھا سرور تھا۔ چودھری منیر صاحب کی خواب دیدہ حسرت انگڑائیاں لے کر جاگ اٹھی تھی۔ اب چودھری صاحب رات دیر سے آنے کے بجائے گھر لوٹتے اور صبح حسن کے بازار پر حاضری لگاتے۔ بچے اسکول ہوتے، رات میں اسما انہیں جلدی سلا دیتی۔ چودھری صاحب نے شادی کے تحفے میں قیمتی زیورات اور تحفے کے ساتھ ساتھ اسما سے صرف ایک وعدہ مانگا تھا کہ وہ تمام عمر اس نکاح کے بھید کو نہیں کھولے گی، اور اسما نے چودھری منیر صاحب کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائی تھی کہ وہ ان کی عزت وقار اور مقام کا ہر صورت خیال رکھے گی۔ ادھر شمیم بیگم کے سینے پر ناک ڈنگ مارنے لگے تھے۔ عورت اپنے شوہر کی چال ڈھال سے اس کے دل کا حوال جان لیتی ہے۔ چودھری صاحب کا وہ پہلے والے چودھری منیر صاحب رہے تھے۔ رات کے کھانے پر نہ پہنچتے، صبح انہیں گھر سے جانے کی جلدی ہوتی، گھر کے کسی معاملے میں انہیں دلچسپی نہ ہوتی، نہ ہی دل سے گفتگو کرتے۔ شمیم بیگم کے ساتھ چودھری صاحب کا اتنے برسوں کا ساتھ تھا، بھلا وہ کیسے چونکتی نہ، مگر ان کی رسائی گھر سے باہر نہ تھی۔ اب بیٹے کو کس منہ سے کہتی کہ باپ پر نظر رکھو۔ اندر ہی اندر گھولنے لگی، شوگر بڑھ گئی، بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا۔ بیمار بیوی سے شوہر بہت جلد اکتا جاتا ہے۔ اور پھر چودھری صاحب کی زندگی میں تو ایک جوان اور پری نما بیوی آ چکی تھی جو انہیں ٹوٹ کر چاہتی تھی۔ اسما نے عشق کا مفہوم پہلی بار جانا تھا۔ پہلے تو اس کا اور ناصر کا ساتھ روٹی پانی، رونے دھونے اور لڑائی جھگڑے تک ہی محدود تھا، اور اب وہ جس طرح چودھری منیر صاحب سے اپنا والہانہ محبت کا اظہار کرتی تو وہ بھی اس کے گرویدہ ہو جاتے۔ مرد عورت کے صرف پیار کا ہی تو بھوکا ہوتا ہے۔ وہ دونوں عشق کی سرمستی میں مدہوش تھے۔ ادھر آگ صرف شمیم بیگم کے سینے میں نہیں دھک رہی تھی بلکہ گھر میں بھی باتیں چل رہی تھی۔ چودھری منیر صاحب رات 1 بجے تک اسما کے گھر رکتے تو ڈرائیور بیچارہ گاڑی میں بیٹھا ان کی واپسی کا انتظار کرتا رہتا۔ صبح پھر سے چودھری منیر صاحب کا حکم ہوتا تو 10 بجے انہیں لینے آ جاتا۔ غریب آدمی تھا، نوکری نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی چودھری منیر صاحب اس کی مٹھی گرم کرتے رہتے، مگر اس کی بیوی روز لیٹ آنے پر خوب جھگڑتی، اس پر شک کرتی کہ وہ کسی کوٹھے پر طوائف کے پاس جاتا ہے، لہٰذا اسی شک کی بنا پر روز ہی اس کے گھر میں مار کٹائی ہوتی، بچے روتے۔ اب ڈرائیور لاکھ بیوی کو سمجھاتا کہ چودھری منیر صاحب کے ساتھ تھا، مگر اس کی بیوی نہ مانتی اور کہتی بھلا رات 2 بجے تک بھی کوئی دفتر کھلے بیٹھا رہتا ہے۔ ایک رات اس کی بیوی سے اتنی شدید لڑائی ہوئی کہ ان کے بچے بھی اپنے لڑتے مرتے ماں باپ کو دیکھ کر رونے لگے تو اس نے چینک چینک کر اپنی بیوی سے کہنے لگا، ہاں سن لو تم، چودھری منیر صاحب نے اپنے ڈرائیور ناصر کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، اسی سبب وہ آدھی آدھی رات اور دن 9 سے 1 بجے تک وہیں ہوتے ہیں۔ میں باہر گاڑی میں بیٹھ کر ان کی چوکیداری کرتا ہوں، آگے تم خود ہی سمجھ جاؤ۔
मैं गरीब क्या करूं, ड्राइवर हूं उनका, अगर मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा तो तुम लोग भूखे मर जाओगे। वो चीख रहा था और उसकी बीवी हैरान परेशान रोना धोना भूल कर शोहर को देख रही थी। मुंह से निकली बात कैसे वापिस आ सकती थी। उसको दुख था कि उसने चौधरी साहब को क्यों सबके सामने रुस्वा कर दिया। हालांकि निकाह रुस्वाई तो नहीं थी। फिर यूं ही दिन महीनों और महीने सालों में बदलने लगे। जिंदगी का हर सुख अस्मा को चौधरी साहब ने दिया और बदले में चौधरी साहब उसकी कुर्बत के दिल नशीं लम्हे ही तो चाहते थे, वो भी बच्चों की वजह से मुख्तसर होते। चौधरी मुनीर साहब की मोहब्बत का तो यह आलिम था कि एक लम्हे के लिए भी उससे दूर ना होना चाहते थे, मगर अपनी और अस्मा की मजबूरियां आड़े आ जाती। अली पढ़ाई में कमजोर था, 10वीं जमात से आगे ना जा सका। चौधरी मुनीर साहब ने उसे अपनी फैक्ट्री में लगा दिया कि काम सीख ले तो फिर से प्रोप्राइटर्स बनाकर रख दूंगा। इसी फैक्ट्री में पहले से ड्राइवर का बेटा साजिद भी काम करता था। अली मर्जी से काम पर आता जाता, उससे पैसे भी ज्यादा मिलते, खाना भी अलग से अच्छा दिया जाता। वो चौधरी मुनीर साहब का मंजूर नजर था। साजिद अली से बहुत जलता और उससे खार खाता। फिर दूसरे लोग भी साजिद को खूब भड़काते थे, कहते तुम भी तो इसी तरह ड्राइवर के बेटे हो जिस तरह अली है। अपने खाने में वर्कर्स के साथ दाल सब्जी मिलती और वो मुर्ग मुसल्लम फाड़ता। साजिद और भी चिढ़ जाता। अली के लिबास को देखकर साजिद मजीद एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता। अब तो चौधरी मुनीर ने अली को मोटरसाइकिल भी दे दी थी। साजिद की अली से नफरत और भी बढ़ गई। एक दिन किसी मामूली से तकरार पर साजिद ने अली को सब वर्कर्स के सामने जोरदार थप्पड़ मार दिया। बात मैनेजर से चौधरी मुनीर साहब तक पहुंची। सब इल्जाम साजिद के सर दे रहे थे। चौधरी मुनीर साहब ने मैनेजर को कहा कि साजिद का हिसाब करके इसे फारिग कर दो। मैनेजर ने जब साजिद की छुट्टी की तो उससे भी उलझ पड़ा। मैनेजर ने कहा चौधरी मुनीर साहब का हुक्म है। जवान खून था। चौधरी मुनीर के पास जा पहुंचा। चौधरी मुनीर साहब बिजनेस मीटिंग में मसरूफ थे। गार्ड्स को चकमा देकर चौधरी मुनीर साहब ने बुलाया है कहकर साजिद मीटिंग रूम में पहुंच गया और चिल्लाने लगा, अली आपकी महबूबा का बेटा है, इसलिए आपने मुझे निकाल कर बाहर फेंक दिया। चौधरी मुनीर को ये सारी सिचुएशन बहुत अजीब व गरीब लगी थी। गार्ड साजिद को पकड़ कर ले जाने लगे तो तब भी वो बहुत जोर से चिल्ला रहा था। अली के साथ साथ सब फैक्ट्री वर्कर्स भी उनकी बातें सुन रहे थे। अली को खड़ा देखकर वो और भी ज्यादा चीखने लगा, तेरी माँ का इशारा है चौधरी मुनीर साहब, इसलिए इसे तुम्हारे थप्पड़ की बहुत तकलीफ हुई है, और जो तुम्हें मोटरसाइकिल लेकर दी है ना, वो भी तुम्हारी माँ की कीमत है। मैं भी उनके ड्राइवर का बेटा हूँ, मुझसे ऐसी हमदर्दी क्यों नहीं जताता वो। मेरा बाप तुम्हारे घर के बाहर खड़ा होकर 24-24 घंटे ड्यूटियां देता है, फिर भी ये नाम के अमीर हैं, आज मुझे निकाल रहे हैं। उस रात माँ बाप की लड़ाई के बाद साजिद ने अपने बाप के मुंह से ये बात सुन ली थी और उस दिन से इसके दिलो दिमाग में ये बात बस गई और आज वो जहर उगल रहा था। साजिद तो चला गया मगर अली समेत बहुत से जहनों में कई सवालात छोड़ गया। चौधरी मुनीर भी अकेले कमरे में सर थामे बैठे हुए थे। बरसों की बनाई हुई इज्जत सरे राह नीलाम हो गई। आज अली जब घर पहुंचा तो उसका दिमाग उलझा हुआ था। वो जाते ही अपने कमरे में बंद हो गया। उसे सबके सामने अपनी बेइज्जती का भी गम था और थप्पड़ का भी, मगर शायद वो इस थप्पड़ को भी भुला देता। मगर जो इल्जाम उसके माँ के सर पर साजिद ने लगाए थे, उन्होंने उसे सारी रात चैन से सोने नहीं दिया था। चौधरी मुनीर ने अस्मा को इस फैक्ट्री में होने वाले इस वाक़े का बताना मुनासिब ना समझा था कि वो परेशान होगी और उसकी परेशानी इनसे देखी ना जाती थी। इधर अली अजीब कश्मकश का शिकार था। क्या साजिद सच बोल रहा था? वो गुजरे हुए वक्त पर गौर करने लगा। हर तरफ चौधरी मुनीर का ही अक्स था। वही सामान भिजवाते थे, घर का खर्चा उठाते थे, स्कूल के फैसले, और जिस घर में वो लोग रहते थे वो भी तो चौधरी मुनीर का ही दिया हुआ था। जो लिबास उसने पहना हुआ था वो भी उन्हीं का दिया हुआ था, और ये वाइट भी। वो काफी देर सोचता रहा और फिर चौंक उठा, तो क्या इसका मतलब है मेरी माँ और चौधरी मुनीर? वो इससे ज्यादा कुछ ना सोच सका। अगली सुबह खामोशी से नाश्ता किए बिना ही फैक्ट्री चला गया, मगर गेट पर पहुंचकर वो अंदर जाने की हिम्मत ना कर पाया कि आज लोग इस पर तानेबाजी और सरगोशियां करेंगे। वो काफी देर तक वहां खड़ा रहा, फिर मोटर बाइक भगाता हुआ घर की तरफ चल दिया। उसे दूर से चौधरी मुनीर की गाड़ी अपने घर से बाहर खड़ी नजर आ गई थी। चौधरी मुनीर ने ड्राइवर बदल दिया था। साजिद के बाप को गम नौकरी के जाने का नहीं बल्कि अपने इत्मीनाद के ज़ाया होने का था। इसी गम से वो चारपाई पर पड़ गया। अब अली अपना ज़्यादा वक्त घर से बाहर गुजारता था।
फैक्ट्री तो वो दोबारा गया ही नहीं था। खतरात महसूस करते हुए चौधरी मुनीर ने अस्मा को कहा कि वो अली को समझाए कि वो आवारा गर्दी के बजाय काम पर आए, दोबारा पढ़ाई शुरू कर दे। अस्मा भी अली के रवैये से परेशान थी, मगर उसे खबर ना थी कि अली के अंदर कौन सा लावा उबल रहा है। वो बेड पर पड़ा छत को घूरे जा रहा था। वो उसके सरहाने बैठ गई। उसने चौंक कर माँ को देखा। वो धीरे से उसे कहने लगी कि वो फैक्ट्री जाया करे और काम में दिल लगाए। वो माँ की बातें खामोशी से सुनता रहा, फिर एकदम से उठकर बैठ गया और कहने लगा, अगर मैं काम पर जाने लगूंगा और कमा कर पैसे ले आऊंगा तो आप मेरी कसम खाएं तो फिर आप उनसे कोई चीज़ नहीं लेंगी। वो माँ के हाथ थाम कर कह रहा था, जबकि बेटे के मुंह से ये बात सुनकर अस्मा हैरान रह गई थी। ये अली क्या कह रहा था? क्या उसका बेटा इतना बड़ा हो चुका है कि वो उन दोनों को समझने लगा है? अस्मा से वहां रुकना मुश्किल हो गया था। वो तेजी से बाहर चली गई। उसकी सांस तेज तेज चलने लगी थी। अली ने किसी स्टोर पर नौकरी कर ली थी। जिस दिन उसे पहली तनख्वाह मिली, उसने तनख्वाह के 15,000 माँ के हाथ पर ला कर रखे थे। कहने लगा, मैं ओवर टाइम भी लगाऊंगा, घर के तमाम खर्चे का बोझ भी उठाऊंगा। अब आपने चौधरी मुनीर से कुछ नहीं लेना। जबकि अस्मा उन पैसों को हाथ में पकड़े सकते की हालत में बैठी रह गई थी। वो बोली कि अली बेटा, तुम कैसे भूल गए हो? चौधरी मुनीर हमारे बहुत मोहसिन हैं, उनके हम पर बेपनाह एहसानात हैं। जब तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हुआ था, तुम जानते हो सिर्फ यही एक शख्स हमारे साथ खड़ा था। अस्मा दलाइल से बेटे को समझा रही थी, मगर जहाँ बात इज्जत और गैरत की हो, वहाँ सब दलाइल पार हार जाती हैं। अस्मा चौधरी साहब को चाह कर भी अब अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकती थी, और अली ये बात समझने को तैयार नहीं था। अब अस्मा चौधरी मुनीर साहब को सिर्फ उसी वक्त बुलाती थी जब अली ड्यूटी पर होता था। फिर भी घर आकर अली इसी खोज में रहता कि कहीं उसकी गैर मौजूदगी में चौधरी मुनीर साहब तो नहीं आए थे। उसे अब अपनी बहन की भी फिक्र रहने लगी थी कि अगर वो भी उसके नक्शे कदम पर चलने लगी तो फिर क्या होगा। वो घबरा उठा। अब वो छुपकर सिगरेट भी पीने लगा। अंदर का उबाल वो धुएं में निकालना चाहता था। चौधरी मुनीर साहब दिन ब दिन बदलती सूरत हाल से दिल गिरफ्तार हो चुके थे। एक दो बार वो चौधरी मुनीर साहब के सामने होने पर भी उनके पास से सीना अकड़ा कर अजनबियों की तरह गुजर गया। लेकिन इस मसले का कोई हल नहीं था। घर में फैलाव इतना होता जा रहा था। अली रोज घर में आकर शोर मचाने लगा था। कभी माँ को कहता ये शहर छोड़ देते हैं, कभी कहता मैं खुदकुशी कर लूँगा। अस्मा बहुत रोती और सोचती कि हम दोनों ने कोई गुनाह तो नहीं किया। वो चौधरी मुनीर साहब की मनकुआ है। वैसे बिलफर्ज अगर माँ बुरी भी हो और फिर औलाद उसे बुरा कहे या बुरा समझे तो माँ का सीना फट जाता है। चौधरी मुनीर साहब ने अली का लंदन का वीज़ा लगवा दिया था। अस्मा का भी यही ख्याल था कि वह इस माहौल से निकल जाएगा तो सुधर जाएगा, मगर तकदीर में कुछ और ही लिखा हुआ था। जब वीज़े के बारे में अस्मा ने अली को बताया तो वो भपड़ कर आग बगूला हो गया और गाली गलोच पर उतर आया और कहने लगा कि आप मुझे दूर भिजवा कर गुलछड़े उड़ाना चाहती हैं इस मलिक साहब के साथ। अब अस्मा की भी सब्र की इंतहा हो चुकी थी। वो भी जवाब देने लगी थी, बेटा गन तुम्हारे जहन में भरा हुआ है और ये जिन लोगों ने भरा है मैं खूब जानती हूँ। मैं चौधरी मुनीर साहब की बीवी हूँ, निकाह किया हुआ है मैंने उससे कोई गुनाह नहीं किया। अस्मा चला रही थी और अली का खून खोलने लगा था। वो चीख कर बोला, आपने मेरे बाप की जगह चौधरी मुनीर साहब को दे दी। अली तेजी से उठा और गिलास शीशा उठाकर अस्मा की तरफ बढ़ा, वार करना शुरू कर दिया। बच्ची स्कूल में थी। शोर की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले आए तो अस्मा आखिरी सांस ले रही थी। अली गिरफ्तार हो चुका था। कहानी मीडिया के जरिए चौधरी मुनीर साहब के घर भी पहुंच चुकी थी, लेकिन चौधरी मुनीर साहब को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान अस्मा की जुदाई की सूरत में हो चुका था। मोहब्बत के खसारे से बड़ा खसारा भला क्या हो सकता है। आशिक अपना सब कुछ नीलाम करके मोहब्बत खरीद लेते हैं। चौधरी मुनीर ने कब्र पर अपना नाम अस्मा के साथ लिखवाया। अस्मा की बेटी अब चौधरी मुनीर के पास थी। जीते जी तो अस्मा को इसका असल मकाम ना दे सके, मगर मरने के बाद उसके वजूद को तस्लीम करते हुए बच्ची को घर ले गए और शमीम बेगम को बताया कि ये उनकी ही बच्ची है और इनके अपने बच्चों जैसी तरबियत करो। चौधरी मुनीर साहब अभी सुबह सवेरे फूलों के साथ अस्मा की कब्र पर जाते हैं, नम आंखों और दुखी दिल के साथ। उसे ढेरों बातें करते हैं
और फूलों को कब्र पर सजाते हैं और थके हुए बोझल कदमों से वापस लौट आते हैं। अस्मा की ज़िंदगी ने साबित कर दिया कि मोहब्बत हमेशा रंग लाती है, लेकिन जब वो मोहब्बत हलाल के दायरे में हो तो इज़्ज़त और सुकून दोनों साथ मिलते हैं। वो औरत जो कभी तन्हाई और गुर्बत के साए में घिरी हुई थी, आज एक ऐसे रिश्ते की रोशनी में जी रही है जिसने उसके ज़ख्मों पर मरहम रख दिया। चौधरी मुनीर ने दिखाया कि मर्द सिर्फ ख्वाहिश का सिर नहीं होता, बल्कि वो औरत के आंसू देखकर भी बदल सकता है, उसके बच्चों को सहारा दे सकता है और एक बिखरे घर को दोबारा जन्नत बना सकता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमान और सब्र सबसे बड़ी ताकत है। हालात चाहे जितने भी सख्त हो, अल्लाह हमेशा बेहतर रास्ता दिखाता है, और सबसे बढ़कर ये कि इज्जत के साथ जीने वाली औरत को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। अस्मा की दास्तान ये पैगाम देकर ख़त्म होती है कि मोहब्बत तभी मुकम्मल होती है जब वो ईमान, इज्जत और हलाल के दायरे में परोई जाए। यही मोहब्बत इंसान को असल सुकून देती है और यही मोहब्बत एक बिखरी हुई ज़िंदगी को नया जन्म अता करती है।